Okay, Ravi. Okay. Okay, dear student, we are conducting the mock for UPPSC Polytechnic lecture of our student Ravi, and this is the mock for the control system. Yes. Okay, Ravi, very basic question from the control system. Differentiate the open loop and closed loop control system. Yes, sir. The open loop control system in which only a control action, that means when we supply the input, now there is a control action on that and just output given. But in closed loop control system, there is a feedback. In open loop system, then it is a closed loop control system. So we can say that the stability is increases in closed loop control system. Sensitivity is better as compared to open loop control system, and yeah, no. Hello, sir. Okay. And what is the drawback, disadvantage of Yeah. closed loop control system? कुछ Yes, drawback sir. है? And yes, sir. We can say that now open loop control system is just simple, and closed loop control system is complex because more number of instrument we used now, like in feedback. So now one disadvantage is that it is simple and it is bulky. Okay. And which type of feedback we use in control system generally? Sir, for controlling purpose, we use negative feedback in closed loop control system. And why we do not have to use the positive feedback? Sir, positive feedback is used in oscillator because their sustained oscillation are used. But when we use the positive feedback, we just say that the error signal is more and more, because in reference input the feedback, positive feedback, the error signal increases. So there is no controlling purpose for positive feedback, I think. Okay. Suppose we have a system with negative feedback. Yes, sir. Okay. Then I am giving the three options. This system will always be stable. This system will always be unstable. This system can be stable or unstable, can't say ever. What is the answer? And why? Yes, sir. Yes, sir. It may or may not be stable. That depends on the control action and feedback. आपकी आवाज रवि सही नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं रवि? Yes, sir. Now audible, sir. हाँ, थोड़ा सा लाउडली बोले, थोड़ा लाउड. ओके सर. ना सो सर, हम बोल नहीं सकते हैं कि हाँ वो क्लोज, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो वो पक्का स्टेबल ही होगा या अनस्टेबल ही होगा. वो सर डिपेंड करेगा कि हमारा जो ऑन विच पैरामीटर, किस पर मोस्टली डिपेंड करता है? सर मोस्टली जो डिपेंड करेगा वो मुझे लगता है कि जो अपना फीडबैक वाला सिस्टम है उस पर डिपेंड करेगा, और कंट्रोल एक्शन पे भी डिपेंड करेगा. फीडबैक क्या लेना चाहिए? सबसे बेस्ट फीडबैक क्या ले? आपने बोला फीडबैक डिपेंड करेगा, तो मैं क्या फीडबैक लूं जो बेहतर हो हमारे सिस्टम के लिए? सर मोस्टली अगर हम यूनिटी फीडबैक लें, निगेटिव यूनिटी फीडबैक, तो हम देखते हैं कि अपना जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा. तो मैं अभी आपको क्वेश्चन बदल देता हूं. नेगेटिव फीडबैक विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक, देन कमेंट. ऑप्शन 3 है आपके पास जो मैंने पहले दिए. सर उसमें भी सर बोल सकते हैं कि कभी स्टेबल भी होगा, कभी अनस्टेबल भी होगा. सर अभी आपने बोला फीडबैक, मैंने आपके हिसाब से फीडबैक बेस्ट कर दिया. अब क्या करें बताओ, अब क्या चेंज करें? किस पर डिपेंड करेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑन विच पैरामीटर सिस्टम डिपेंड्स. सर वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है 1 + GH HS = 0, उसमें सर हमारा जो पोल का लोकेशन है वो हमेशा लेफ्ट साइड में आना चाहिए जो मेरा एक्सिस के. अगर हम फीडबैक देते हैं उसके बाद भी अगर हमारा पोल जो है वो अगर एक भी पोल राइट साइड में चला गया तो सर सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. चले, किसी भी अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम मैं क्या करूं?
अगर सर किसी भी अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबल में बदलना है तो सर सर हम अगर हम उसमें जीरो ऐड करें, अगर ना, अगर फाइनाइट जीरो हम अगर ऐड करें अगर ट्रांसफर सिस्टम में, सर एम आई ऑडिबल सर? ऑडिबल। सर कैन आई रिपीट? जीरो ऐड करें? यस सर, जीरो ऐड करेंगे हाँ, तो वो सिस्टम वो सिस्टम स्टेबल की तरफ मूव करेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे अगर हम फाइनाइट जीरो ऐड करते हैं तो जब हम रूट लोकस डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो रूट लोकस है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जाता है, और जितना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो हम एक ये बोल सकते हैं कि अगर हम फाइनाइट जीरो ऐड करेंगे तो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी सर। एक ये ऑप्शन। फाइनाइट जीरो ऐड करेंगे सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। ओके, तो कोई आप ऐसा मुझे मेथड या कोई ऐसा नाम बता सकते हैं जिसमें हम फाइनाइट जीरो ऐड करते हैं? मेथड? यस आप बोल सकते हाँ, सर। हाँ यस सर, अगर हम हमारा जो कंट्रोल एक्शन होता है उससे पहले, तो उसमें अगर लीड कंपनसेटर यूज कर लें तो लीड कंपनसेटर जो है वो क्या करता है, उसमें जो डोमिनेंट होता है वो जीरो होता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो स्टेबिलिटी की तरफ से मूव करेगा सर। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है उससे। हम बोल सकते हैं कि अगर लीड कंपनसेटर यूज करें तो हो सकता है कि स्टेबिलिटी हो। व्हाट इज द सेंसिटिविटी? सर सेंसिटिविटी क्या होता है कि हमारे हम हमारा जो आउटपुट होता है वो हमारा आउटपुट कितना चेंज हो रहा है जब हम इनपुट में कोई वेरिएशन कर रहे हैं, यानी कि आउटपुट पे कितना वेरिएशन हो रहा है जब हम इनपुट में किसी चीज में वेरिएशन कर रहे हैं, तो उसी को सेंसिटिविटी बोलेंगे। अच्छा, मतलब कि सेंसिटिविटी इज चेंज इन आउटपुट विद चेंज इन इनपुट। ये सिंपल हाँ फार्मूला लिख दूं? yes sir, yes sir. Now can I write so sensitivity equal to if del m by m upon del g by g, where m is the overall transfer function और g is the parameter variation. Okay, so अगर हम बात करेंगे अभी ओपन लूप। प्लीज मैं क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा और चेंज चाहता हूँ। yes तो sir, सेंसिटिविटी आपने बोला कि आउटपुट में चेंज ड्यू टू इनपुट में चेंज, तो yes अभी सेंसिटिविटी कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? Which? सर अगर कंट्रोल सिस्टम का बात करें तो सेंसिटिविटी जो है वो कम होना चाहिए सर। मतलब कि अगर हम मीन्स अगर हम इनपुट में थोड़ा भी चेंज कर रहे हैं ना तो आउटपुट में तुरंत चेंज नहीं आना चाहिए डिस्टरबेंस के कारण। यानी कि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो सेंसिटिव टू इनपुट कमेंट्स होना चाहिए, लेकिन हमारे डिस्टरबेंस में जो है डिस्टरबेंस के रिगार्डिंग वो इनसेंसिटिव होना चाहिए सर। तो मतलब जैसे अगर हम ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप का बात करें तो ओपन लूप सिस्टम का जो सेंसिटिविटी होता है वो 100% होता है, बट अगर उसके रिलेटिव में अगर क्लोज लूप का देखें तो अगर हम जी के अकॉर्डिंग वैरी कराते हैं तो थोड़ा कम होता है। अगर हम फीडबैक नेटवर्क में एच के अकॉर्डिंग वैरी कराते हैं तो वो थोड़ा उससे ज्यादा होता है। तो सर सेंसिटिविटी कम होना चाहिए। आप रवि, आपने जो बताया पूरा एकदम सही बताया, पर इसमें बेसिक कंसेप्ट आप भूल गए। आपने जो बताया एकदम सही बताया, जो भी आपने पूरा बताया 100% होता है ये। आप बोल रहे हैं कि इनपुट में चेंज करें तो आउटपुट में चेंज नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, है ना? यही तो। पर हम इसका मतलब तो पहले मुझे कंप्लीट करने दें फिर आप बताएं। तो हमारा उद्देश्य क्या, व्हाट इज अवर मेन मोटिव दैट इनपुट में जो चेंज है वो आउटपुट में हाथ उसी टाइम रिफ्लेक्ट हो। व्हाट इज द मीन ऑफ द एक्यूरेसी सेंसिटिव? तो ये तो ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। इनपुट में आप जो चेंज कर रहे हैं वो उसी टाइम पर रिफ्लेक्ट हो, मींस योर सिस्टम शुड बी हाईली 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 सेंसिटिव फॉर द इनपुट। दिस इज फ्रॉम माय साइड, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बताएं। यस सर, वही तो सर, वही मैं भी वही बोलना चाह रहा था कि सर जो हमारा सिस्टम होना चाहिए वो सेंसिटिव टू इनपुट कमेंट्स होना चाहिए बट इनसेंसिटिव टू डिस्टरबेंस होना चाहिए। आई थिंक दिस मे बी, है ना? मैं आपको इसमें, चले योर टाइम इज बीन कंप्लीटेड, मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसी का आंसर दे देता हूँ।
our system should be highly sensitive for the input but very low sensitive for the noise. हम कंट्रोल सिस्टम में आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है ना, वो सभी नॉइस के लिए हम बात करते हैं कि नॉइस के चेंज होने से हमारे आउटपुट पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, नहीं बट आना इनपुट चाहिए। के चेंज होने से आउटपुट पर आना चाहिए। तो ये हम जो बात करते हैं पूरी कंट्रोल सिस्टम में, हम जो पूरी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, जो पूरे फॉर्मूले पढ़ते हैं, वो हम बाय डिफॉल्ट नॉइस के लिए पढ़ते हैं। बट वी नो द कंसेप्ट कि व्हेन वी हैव द सेंसिटिव फॉर द नॉइस एंड कब हमें इनपुट के लिए सेंसिटिव होना है, पहली बात रवि। ओके बात? तो यस सर, सर बस एक डाउट है, तो जैसे अगर हम ओपन लूप सिस्टम की बात करते हैं तो उसका तो सेंसिटिविटी 100% होता है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ओपन लूप सिस्टम जो है वो क्लोज लूप के कंपेयर में सेंसिटिविटी के को अगर देखा जाए तो अच्छा हुआ सर? ओपन लूप की सेंसिटिविटी 100% होती है। आपने उसका डेरिवेशन किया है रवि कभी? यस सर, हेलो, अगर अगर यस सर, जब आप उसका मैंने किया है। डेरिवेशन करेंगे तो आप देखेंगे हम उसमें क्या देख रहे हैं, हम उसमें पैरामीटर चेंज पे डेरिवेशन निकालते हैं 100% की। आप किससे निकालते हो? हाँ, आप उसको अगर डेरिवेशन देखें, हम केवल उसमें क्या निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन में जो चेंज विद द चेंज होता है। जी, है ना। फॉरवर्ड पाथ में जो चेंज है जी के यस सर, लिए निकालते हैं। अब पैरामीटर में चेंज किसके लिए आ रहा है? पैरामीटर में चेंज आ रहा है ड्यू टू योर नॉइस। अगर मैं बोल दूं कि पैरामीटर में चेंज आ रहा है ड्यू टू इनपुट, तो दैट इज ओके। मैंने क्या बोला आपको कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट नॉइस के लिए पढ़ रहे हैं। पर अगर मैं आपको बोल दूं कि वो यस सर, इनपुट के कारण है, तो आप बोलेंगे 100% ओके है, गुड है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। हेलो, यस सर, अंडरस्टैंड सर। है ना? ओके रवि, योर टाइम हैज बीन कंप्लीट। इफ आई गिव द फीडबैक, योर टेक्निकल नॉलेज, योर नॉलेज इज गुड, है ना, आपकी नॉलेज अच्छी है, पर कुछ कुछ कंसेप्ट में कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी पढ़ने की आपको अभी रिक्वायरमेंट है ना। पर ओके अगर सर, मैं मार्क्स दूं आउट ऑफ 10, ये अराउंड 7.5, ठीक है? ओके सर। ओके, एंड इफ आई गिव द मार्क्स टू योर कॉन्फिडेंस लेवल इज आल्सो गुड। मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बोला था कि अभी आप बिल्कुल यस ऐसा नहीं है कि एकदम न्यूली पास आउट जो बच्चे होते हैं या ऐसा होता है तो उनमें थोड़ा सा हड़बड़ाहट और ये सब ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। सर, ठीक है रवि? ओके तो ये दोनों यस ये सर, आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। थोड़ा सा कोई ओके बात नहीं है, क्वेश्चन का आंसर नहीं बनना है, इट इज नॉट अ बिग इशू। ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी। अगर मैं यस इंटरव्यू सर, बैठ जाऊँ तो मेरे साथ भी हो जाएगा, और किसी के साथ भी हो जाएगा, जो इंटरव्यू बैठे उनके साथ भी हो जाएगा, है ना। ओके इसमें सर, आपको यस सर, ऐसा नहीं लेना, जितना हो पाए उतना करना है। सबसे बड़ा काम है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और आप जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आंसर को, वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके रवि, और अभी हम हमारे पास टाइम है तो हम पढ़ भी सकते हैं। यस सर, ना, यस सर। ओके, ओके।